Hello, my dear students, and welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. In this video, I will be starting with the fourth chapter of physics of class 9th, Pressure in Fluids and Atmospheric Pressure. This is a very important chapter for class 9th, and it has a good weightage. It has a lot of numericals also, derivations also. So this is very conceptual chapter, and if you pay attention, you will understand this chapter very nicely. We have completed the first three chapters in my YouTube channel. They are arranged in proper playlists. You can watch them. And this is the fourth chapter, which we are going to study, which we are going to start today. Take your notebook and your pen so that you can take down the notes while I'm teaching you and understand the concepts very nicely. These notes will be very helpful for you for your examinations. Let us start the chapter without any delay. The first term that we will be studying is thrust. So what is thrust? Write down. Thrust is the force. Thrust is the force. Thrust is a force which acts normally. Normally का मतलब होता है perpendicular on a surface. कोई भी अगर surface है उस पर अगर कोई force लग रहा है, but the force must be perpendicular on the surface. I will call that kind of force that is a thrust. I will be calling that force with the term thrust. Let's draw a diagram. Suppose this is a body, or you can draw a tabletop first. Let us draw the surface first. This is the tabletop. Any surface, it can be the floor of your room also, or it is the top of a table. It is this one is a surface, right? So this surface, on this surface, if I take a force, say this force, say I'm calling it by the name F, this force is acting vertically downwards on the surface. तो ये जो surface है इसके साथ कितना angle बना रहा है? This force is making an angle of 90 degrees, and hence this force is known as thrust. But if I draw this force, you see this force, this is also acting on the same surface. Say let us call this force as F2. जो thrust था उसका नाम मैंने F1 कर दिया. देखो, तो F1 is a thrust, but F2 का देखो, F2 is also a force which is acting, और हो सकता है दोनों का magnitude भी same हो. Maybe F1 is of 10 Newton and F2 is also 10 Newton, but if you see the angle with the surface, ये surface है, इसके साथ ये जो angle है, this angle is not 90 degrees. It is not equal to 90 degrees, and hence F2 is not a thrust. Similarly, if I take another force acting on the same surface, which may or may not be of the same magnitude, say let us call this F3, and see this F3 is also not perpendicular. This angle is not 90 degrees. This angle is not 90 degrees. Hence F3 is also not thrust. So thrust के लिए important है, the force must act normally. Normal in physics में normal का मतलब होता है perpendicular. The force must act perpendicular on a surface. ठीक है? Now consider a force weight of a body. We all know that weight is a force. सब जानते हो वेट क्या है? वेट ऑफ अ बॉडी इज एक्चुअली द फोर्स. कोई तुमसे वेट का डेफिनेशन पूछे, वेट ऑफ अ बॉडी का डेफिनेशन, तो वो होता है वेट ऑफ अ बॉडी इज दैट फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी. एंड अर्थ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट फोर्सेस से खींचता है. इफ इट इज अ बिगर ऑब्जेक्ट, मैसिव ऑब्जेक्ट, देन उसको ज्यादा फोर्स से खींचता है. छोटा ऑब्जेक्ट है तो कम फोर्स से खींचता है. दैट मींस छोटा ऑब्जेक्ट का वेट कम, बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा. तो वेट ऑफ अ बॉडी इज नथिंग बट अ फोर्स. एंड इफ यू draw a diagram, let me draw any surface, say this is a surface,
इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ, maybe a block of wood or a block of iron, or maybe your book, maybe a thick book, or anything, a stone, anything. The weight of a body always acts vertically downwards. ये याद रखना, weight never acts obliquely. इस तरह से obliquely weight कभी भी act नहीं करता है. Weight of a body always acts perpendicular downwards. मतलब weight of a body is always a thrust. Weight is always a thrust. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो मैं ये बोल सकता हूं कि सरफेस के ऊपर कितना थ्रस्ट लगा, इस सरफेस के ऊपर उतना थ्रस्ट लगा जितना इस बॉडी का वेट है. So the thrust exerted by a body placed on a surface is equal to its weight. This is a very important statement. Write down the thrust exerted by a body placed on a surface is equal to its weight. Underline the term weight. And it is always same in whatsoever manner the body is placed. Even if you keep the same book on this surface, say this is the same surface, if you keep the same book now in this manner, ये बुक इसको मैंने इसी ऑब्जेक्ट को मैंने बस इस तरह से पोजीशन करके रख दिया. अभी ये इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ था और अभी मैंने उसको इस साइड से रख दिया है, जस्ट घुमा के इस तरह से रख दिया है. इसको मैंने एक बार ऐसे घुमा दिया एंड द बॉडी इज नाउ स्टैंडिंग इन दिस मैनर, द सेम बॉडी. Will the weight change? No, the weight of the body does not change. So in no manner, however I position the body, the weight of the body remains the same. ठीक है, तो ये एक बात हो गया. Now let us come to the nature of this physical quantity. Thrust is a physical quantity because it is force, and force is a physical quantity. So thrust is also a physical quantity, whether it is vector or scalar. Now, so force is a vector quantity because it has a direction. देखो ना, हमने arrow बनाया है. हमने जब भी हमने लिखा है वेट या फोर्स, हमने एक एरो बनाया है. दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी अनडाउटेडली, एंड थ्रस्ट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ थ्रस्ट इज फोर्स. देखो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, थ्रस्ट वेक्टर होता है कि स्केलर? राइट डाउन, थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अंडरलाइन इट. अब बात आती है यूनिट्स की. थ्रस्ट का मेजर करेंगे तो उसकी यूनिट्स क्या है? राइट डाउन यूनिट्स ऑफ थ्रस्ट. एसआई यूनिट की बात करें तो ऑब्वियसली न्यूटन होगा. क्यों न्यूटन होगा? क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, थ्रस्ट भी फोर्स है. एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन. SI unit of thrust is Newton. Symbol of Newton is capital N, but when we will write in word, we will write small n EWTON. CGS unit की बात करें तो फोर्स का जो CGS unit होता है वो होता है डाइन. थ्रस्ट भी फोर्स है, सो इट्स CGS unit is also dyne. Dyne का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, DYNE. And there is a relation between Newton and dyne which we have discussed in the previous chapter. मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है. डाइन और न्यूटन के बीच का जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. इधर भी एक बार देख लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. अच्छा, MKS सिस्टम भी पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 3 में ही वीडियोस हैं उसके, देख लेना. MKS सिस्टम, MKS MKS सिस्टम में जो यूनिट होता है थ्रस्ट का वो होता है KGF. ठीक है, और GF भी यूज करते हैं. तो KGF और GF के बीच में क्या रिलेशन होता है? 1 KGF इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन.
you can in numerical sometimes we take 10 newton also if it is specified in the question कि आप 10 newton ले लो तो हम 9.8 को 10 लेते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिकली इट इज 9.8 न्यूटन। और ग्राम फोर्स के टर्म्स में बात करें तो 1 ग्राम फोर्स उसको हम सीजीएस के साथ कंपेयर करते हैं कि डाइन में कन्वर्ट करते हैं 980 डाइन। कभी कभी 1000 भी एग्जाम क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आप 1000 डाइन ले लो तो 1000 डाइन भी लेते हैं डाइन। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम ये स्पेसिफिक वैल्यूज लेते हैं 1 kgf इज 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम फोर्स इज 980 डाइन। व्हेन वी विल डू क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज नंबर्स दीज वैल्यूज इन द न्यूमेरिकल्स। ये हो गया यूनिट्स के बारे में और थ्रस्ट के बारे में, थ्रस्ट के यूनिट्स के बारे में और थ्रस्ट के कंप्लीटली थ्रस्ट हमने देख लिया। अब बात आती है जो टर्म प्रेशर है, ये जो चैप्टर में लिखा हुआ है टर्म है वो है प्रेशर। अब प्रेशर को समझते हैं, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, राइट डाउन व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर इज thrust per unit area of the surface. Pressure, write down, exerted on a surface is equal to thrust per unit area of the surface. मेरे पास एक surface है, say this is the surface, and let us say that this surface has an area of, say this is 1 meter and say this is also 1 meter. So the area is 1 meter square. अगर ये सरफेस का एरिया हम करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, the length is 1 meter, breadth is also 1 meter. So length into breadth will give me the area. So area of this surface is 1 meter square. इसका एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया में, इस एरिया के ऊपर एक फोर्स लगा and that force is say for example 5 न्यूटन। तो हम क्या बोलेंगे कितना प्रेशर लगा है, क्या बोल रहा है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। यानी ये फोर्स जो थ्रस्ट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स है 90 डिग्रीज पे लग रहा है ना सरफेस पे, तो ये फोर्स थ्रस्ट है। एंड पर यूनिट एरिया मींस फोर्स डिवाइडेड विद एरिया इज थ्रस्ट इज प्रेशर। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज प्रेशर, यही लिखा हुआ है डेफिनेशन में, प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे निकालना है कितना प्रेशर है तो बोलेंगे 5, क्योंकि 5 न्यूटन इज थ्रस्ट, 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया 1 मीटर स्क्वायर। सो 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5 and that 5 is the pressure. यूनिट क्या होता है प्रेशर का, पैस्कल। तो हम बोलेंगे 5 pascal is the unit, is the pressure on this surface. ठीक है, तो इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख दो। इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। यही डेफिनेशन में हमने यही लिखा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और इसका यूनिट, अब हम यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। थ्रस्ट का यूनिट न्यूटन होता है ना न्यूटन, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊपर में न्यूटन नीचे डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पैस्कल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पैस्कल। तो यूनिट ऑफ प्रेशर कोई तुमसे पूछे तो बोलना पैस्कल। देखो यूनिट ऑफ प्रेशर, the SI unit of pressure is अगर ध्यान से देखो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बुलाते हैं पैस्कल। तो पैस्कल का डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है PA, P कैपिटल A स्मॉल। पैस्कल का डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब डेफिनेशन लिखना बहुत इजी है, क्योंकि तुम जानते हो कि न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर को ही हम पैस्कल बुला रहे हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही
प्रेशर का यूनिट होता है जिसको हम प्यार से पैस्कल बुलाते हैं। तो 1 पैस्कल को हम लिख सकते हैं बिल्कुल कि दैट इज 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, राइट। कोई तुमसे पूछे डिफाइन 1 पैस्कल, क्या बोलोगे? इसी इक्वेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे। 1 पैस्कल ऐसे बोलोगे, 1 पैस्कल इज द प्रेशर exerted on a surface of area 1 मीटर स्क्वायर by a force of 1 न्यूटन। मेरे साथ साथ बोलो फिर से। 1 Pascal is defined as the pressure exerted on an area of 1 मीटर स्क्वायर by a force of 1 न्यूटन। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, 1 न्यूटन को पहले बोल दो, 1 Pascal is the pressure exerted by a force of 1 न्यूटन on a surface of 1 मीटर स्क्वायर, on a surface of area 1 मीटर स्क्वायर। तो कितना इजी है डेफिनेशन। अगर तुम्हें ये इक्वेशन याद है तो तुम 1 पैस्कल का डेफिनेशन आराम से बोल सकते हो। राइट डाउन 1 पैस्कल का डेफिनेशन। 1 पैस्कल is the pressure exerted by, कौन exert कर रहा है? by a force of 1 न्यूटन, by a force of 1 न्यूटन, और कितने एरिया पर? on a surface of area, on a surface of area 1 मीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है, 1 मीटर स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 पैस्कल। ठीक है, ये ऐसा यूनिट से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? नाउ दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वी डू नॉट express pressure with its direction. Its magnitude is enough to express its meaning completely. जब भी हम बोलते हैं कि इस सरफेस पे 20 पैस्कल प्रेशर है, इतना ही काफी है। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, साइडवर्ड्स किस डायरेक्शन में। प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। प्रेशर इज कंप्लीट इन इट्स मीनिंग व्हेन आई से ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। इस एरिया पर 20 पैस्कल प्रेशर है, बस मीनिंग कंप्लीट। इस एरिया पर 15 पैस्कल प्रेशर एक्सर्ट हुआ, मीनिंग इज कंप्लीट। डायरेक्शन नहीं होता है प्रेशर का, hence pressure is a scalar quantity. Again a very very important question for exam कि प्रेशर वेक्टर है या स्केलर? प्रेशर स्केलर है, लेकिन थ्रस्ट वेक्टर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, अंडरलाइन स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट तो पैस्कल है, सीजीएस यूनिट क्या है? तो सीजीएस यूनिट भी इसी से निकाल सकते हैं। जैसे थ्रस्ट का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन, ऊपर में डाइन, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर will give you the CGS unit of pressure. जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट था जिसको हम पैस्कल बुलाते थे, और उसी तरह डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट हो जाएगा। इट डजंट हैव अ स्पेशल नेम। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक स्पेशल नेम था पैस्कल, लेकिन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई स्पेशल नेम नहीं है, उसको वैसे ही बोलते हैं। तो ये लिख लो, द सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल। इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, काफी इजी होता है कन्वर्ट करना। रिलेशनशिप लिख लो, 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर उल्टे तरीके से बोलेंगे तो बोलेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों रिलेशंस याद कर लो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसके अलावा भी प्रेशर के काफी सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे होता है बार,
millibar, torr, ATM. These are ATM means atmospheric pressure. तो इस तरह से काफी डिफरेंट अलग अलग यूनिट्स होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में. आज का लेक्चर 1 यहीं पे मैं एंड करता हूं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट, एंड ऑल्सो टू सपोर्ट मी चिल्ड्रन, please press the bell icon. See you people in the next upcoming video. God bless you.